Good morning everyone. A very warm welcome to each and every one of you present in the science class today. Before going ahead with our states of matter, as this is our fifth class today going to be, that is what I remember is that this is going to be our fifth class today of the states of matter of this chapter. So again I would request you, that is from today onwards, your 9 to 12 sessions, that is from classes 9 to 12 students, they are being allowed or they can go to school. मतलब वो लोग स्कूल जा सकते हैं after taking the undertakings from the parents as well as after getting the permissions from the school management in order to clear their doubts. And hope so, as it was some of the news related to our schools only in the last day, that is yesterday, that is there would be some more guidelines regarding the reopening of the schools in this that is the guidelines related to the unlock, or that is removing the lockdown in the fourth phase or the fifth phase. Okay, so before going ahead, I would first request you to take all the necessary precautions. Okay, very soon the time has come. Basically you just have to take the precautions, that's it. No need to worry about it. Use mask, keep on washing your hands frequently, and especially when you go somewhere out or when you come in contact with any other things which are being used by someone else also. Okay, and at the same time please keep having some healthy foods, avoid junk foods, so that your immunity as well would be strong enough and you'll be able to fight with COVID-19 in a much more better manner. Okay, so let us start with today's session. But before going ahead, first and the foremost thing, I'll be revising what we have done in the last classes, and thereafter we'll be starting with today's class. Okay, so this is the screen, and here, okay, if we move ahead with the first one. Okay, so we started with this chapter. Here we studied about different types of processes. That was your melting, from solid to liquid, liquid to gas, that was your evaporation, gas to liquid, condensation, and your liquid to solid, freezing. Okay, then we discussed what is matter. So anything that is occupying space and has mass, it's your matter. And since two criteria are necessary for determining anything to be your matter, that is first and the foremost thing, it should occupy some space and as well as it should have some mass. When we talked about the space, I also told you about this, that is the space covered by a thing is called its volume. So I told you how to calculate the volume by taking a simple examples. And so this is the collective definition of matter, that is matter is anything that has mass and occupies space. Then I told you what is matter made up of. I started with atom, which you will be dealing ahead in your higher classes, that is in class 8th basically, and at the same time or 9th in detail. Then here it is the molecules, which are tiny particles together make up the matter, and since these are tiny enough, so just like this, if you remember, I hope all of you remember that in the case of germs and diseases when we have studied, so I told you that all these microorganisms, they are microscopic in nature. So since they are microscopic in nature means what? They cannot be seen by our naked eyes, and since when they cannot be seen by our naked eyes, so we have to use some powerful tools such as microscope. In the same way here also, all these atoms or molecules, they are microscopic in nature. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एटम स्मॉलेस्ट है, मॉलिक्यूल से भी छोटा क्या होता है? एटम होता है, और यही एटम्स आपस में दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. लेकिन अभी जब आप और हायर 9th में जाएंगे या 8th में ही थोड़ा सा इंट्रो इसका दे दिया जाता है कि एटम से भी छोटी चीज़ें हैं. ठीक है, एटम भी कुछ स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है, और वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस वॉज द थिंग. तो यहाँ पे सिंस द मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो वेरी मच टाइनी इनफ, सो they also require some powerful tool, and that powerful tool is nothing but the microscope, which is being used to magnify the smaller things so that we can observe them much more clearly. Okay, here is the screen, here is the PDF. Okay, so now starting with this, then I told you that since this is the arrangement, okay,
all these molecules, they have certain kinds of arrangements, and on the basis of this arrangements only they are being classified into solid, liquids or gas. And this arrangement is based on two things, that is your intermolecular space and intermolecular force of attraction. Okay, intermolecular space is space between any two molecules. Intermolecular force of attraction, attraction between any two molecules, that is known as intermolecular force of attraction. Okay, then we talked about the states of matter. Then in the case of states of matter, we have discussed that is there are basically three states of matter. Fourth one, plasma, that is has been discovered, and some Bose-Einstein condensate is also there. You will be studying in your higher class. So starting with these three, that is your solid, liquid or gas. So these solids, molecules are very tightly packed. So since they are tightly packed, so intermolecular space nil or very very less. Intermolecular force of attraction maximum. Okay, moving ahead with the liquids here, intermolecular space more than solids and less than gas. Intermolecular force of attraction less than solid, more than gas. Okay, and since they are means here the molecules are not able to move from one place to another, they are only able to vibrate, and since they are only able to vibrate, therefore they keep on vibrating at their own positions, that is mean positions. Whereas in the case of liquids, since the molecules are loosely packed, so they are able to move to a shorter distance. Okay, moving ahead with this, we have, since they have weak intermolecular force of attraction, liquids generally occupy the shape of the container. Okay, in whichever container you are going to keep it, they will occupy, whether it is your conical flask or your jar or a kind of beaker or anything. Okay, next we discussed also about the gases. These gases have intermolecular space maximum and intermolecular force of attraction minimum. I also shown you the pictorial representation. When we add a spoon of milk or a spoon of sugar or salt, so what happens, where does it disappears? Okay, or why the water becomes milky, why the taste becomes salty or sweeter, all these things we have discussed in the previous classes. Okay, so now it is if we move ahead with this one, what we have done till now, changes of change of states of matter. So change of states of matter, I told you about the melting, कैसे solid liquid में convert हो जाता है. If you remember, मैंने आपको बताया था कि just by when you heat a substance, ठीक है, because if you have to convert a solid into a liquid, you will have to heat that substance, and when you are going to heat that substance, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, पहले एनर्जी गेन करेंगे, फिर उनका वाइब्रेशन और तेज होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच more and more vibrations, the intermolecular force of attraction will get broken. Okay, and once the intermolecular force of attraction gets broken, now the state will also be changed. जैसे solid state था, अब क्या हो जाएगा, liquid हो जाएगा. ठीक है, इसको आप और ज़्यादा हीट करेंगे तो यही मॉलिक्यूल्स फिर से आपस में और ज़्यादा वाइब्रेट करके गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, so in this way the change of state occurs. Okay, before going ahead with the evaporation, that is our next process after melting, first we will be dealing with that table which is given, that is the comparison of solid, liquid, gases together. Okay, on the basis of common criteria. जैसे अगर हम देख लें मॉलिकुलर अरेंजमेंट की बात करें कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से पैक्ड हैं तीनों केसेस में. ठीक है, तो सॉलिड्स में वेरी टाइटली पैक्ड, लिक्विड्स में लूजली पैक्ड, गैसेस में वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर और वेरी वेरी लूजली पैक्ड. ओके, तो चलिए आइए देखते हैं. Okay, this is the table, that is the properties of solid, liquid and gases. Shape, when we talked about the solids, so the shape is fixed because the molecules are fixed. Okay, liquids take the shape of the container because intermolecular force of attraction is weak. Gases, no fixed shape because intermolecular force of attraction is minimum. Okay, next we discussed about the volume. So in the case of volume, the solids have a fixed volume. Solids have a fixed volume, liquids also have a fixed volume, but gases do not have a fixed volume because अब देखिए ये कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करिए. ठीक है, solids, so all of us we know that is solids have a fixed volume. Liquids के केस में कैसे वॉल्यूम फिक्स रहेगा. देखिए मान लीजिए आपने 1 लीटर ऑफ मिल्क लिया. ठीक है,
नाउ दिस 1 लीटर ऑफ मिल्क और वाटर, आप जो लेना चाहें कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक 1 लीटर ऑफ मिल्क, ओके, एंड यू पुट इट इन अ कंटेनर फॉर बॉइलिंग इट, ठीक है। फिर आप उसी दूध को आप चाहिए तो आप प्लास्टिक के बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र इट इनटू सम बिगर कंटेनर्स लाइक योर बिगर प्लेट्स आर देयर, ठीक है, आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो रहेगा तो 1 लीटर ही मिल्क ना, ठीक है। चाहे आप उसको थाली में कर दीजिए, चाहे ग्लास में कर दीजिए, चाहे भगोने में कर दीजिए, किसी भी यूटेंसिल्स में आप कर दीजिए, बट दैट वॉल्यूम 1 लीटर विल रिमेन कांस्टेंट ओनली। लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको गैसेस में वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम थोड़ा सा स्प्रे करते हैं एक कॉर्नर ऑफ द रूम में, तो मान लीजिए कितने हुए, छोटे सी वॉल्यूम में स्प्रे किया हमने, वो क्या हुआ, पूरे के पूरे रूम में फैल गया उसका महक, ठीक है, फ्रेग्रेंस। सो नाउ द वॉल्यूम हैज़ ऑक्यूपाइड, और द नाउ जो छोटा सा वॉल्यूम हमने स्प्रे किया था, अब वो वॉल्यूम क्या हो गया, पूरा का पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। फिर अगर आप देखते हो कि रूम में ही तो रहेगा नहीं, वो स्मेल बाहर भी जाएगी, फ्रेग्रेंस बाहर भी जाएगा, तो अब क्या हो गया, अब तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है और फाइनली वो स्मेल चली जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में स्पेस इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे वो तुरंत अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं। स्मोक आप देखते हो, ठीक है, धुआं उड़ता है, फिर ऊपर जाके एकदम वैनिश हो जाता है, वैनिश नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से क्या होता है, सॉरी, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की वजह से क्या होता है, जगह इतनी ज़्यादा है कि उसी में वो जाके फिट हो जाता है और वो दिखाई नहीं देता है। ओके, लेट अस मूव अहेड। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नेग्लिजिबल स्पेस और नो स्पेस एट ऑल। ओके, एट ऑल जब हम बोल देते हैं तो फिर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसलिए नेग्लिजिबल बोलते हैं कि मतलब एकदम ना के बराबर। ओके, लिक्विड्स दे हैव सम स्पेस, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। गैसेस लॉट्स ऑफ स्पेस। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स only vibrate at their fixed position, move around within the liquid and move freely in all directions। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये था आपका कंपैरिजन प्रॉपर्टी, कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। ये टेबल इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपको जैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। सो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, इन 5 पॉइंट के बेसिस पे आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और लिक्विड्स एंड गैस, और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी, गैसेस एंड सॉलिड्स, ठीक है, कोई भी 2 को उठा करके या तीनों को उठा के पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज योर इवेपोरेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेपोरेशन, ओके, सो हियर आल्सो द concept is same only. Okay, and how it is, now I'll be showing you with this part. Okay, so what we are going to see here is, that is, if we see, let us take a box first, rectangle. Okay, let us take a smaller box. Okay, this is our box. Now what we are going to see is evaporation, हमें देखना है, ठीक है। तो evaporation basically the meaning is what you are able to see here is, that is what we are going to study here, basically how solid is getting converted into, sorry, not the solid, we are talking about the liquid. Okay, how this liquid is getting converted into a gas. This is what we are going to study today, and this is what is going to come in the case of your, okay, this is the explanation part, that is here we are going to explain you, or I am going to explain you basically, that is how this, okay, how the conversion of liquid
Okay. How the liquid is getting converted into a gas. Now all of us we know that is, since the molecules of liquid, they are loosely packed, so if they are loosely packed, then कितना स्पेस रहेगा कम से कम, इसको हम और दूर कर लेते हैं. Okay, suppose this is the case. Now, so these are what? These are the molecules of liquid. Now what you do is, when we start heating them, that is, these molecules are heated. So when the molecules are being heated, what you will observe, I told you that since they have intermolecular space and intermolecular force of attraction, तो जब इनको हीट किया जाएगा तो एक वर्ड आता है, आप एनर्जी के वर्ड से जानिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, कि वेन एवर वी आर हीटिंग एनी सब्सटेंस दे गेन सम एनर्जी. ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं. एंड व्हेन दे गेन सम एनर्जी, ओके, देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग और मूविंग वेरी रैपिडली. क्योंकि लिक्विड है तो यहाँ पे वाइब्रेट नहीं करेगा, ये पार्टिकल्स आपस में बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे और आपस में कोलाइड करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, ओके, जैसे टकराने लगेंगे. फिर what will you will happen, since when they are heated up, so what will happen, they will gain energy, okay, they will gain energy, and when they will gain energy, एक ऐसा टाइम आएगा जब they will break their intermolecular force of attraction. Okay, they will, इसको मैं ब्रेक बोलता हूँ, आपके लैंग्वेज में ब्रेक और ओवरकम द फोर्सेस और ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओवरकम द, okay, overcome the intermolecular forces of attraction, okay. And when they will overcome the intermolecular forces of attraction, so what will happen, these molecules, अब इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. बॉक्स वही रहेगा, लेकिन क्योंकि ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, अब टूट चुका है, तो ये मॉलिक्यूल्स जहाँ इनका मन करेगा ये वहाँ पे रहेंगे, काफ़ी दूर दूर पहुँच जाएंगे. तो ये इसे आपको खाली यहाँ बॉक्स में खाली दो ही दिखेगा, क्योंकि बाकी सारे जा चुके होंगे कहीं और. ओके, दैट इज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज. और जब ये ऐसा स्पेस हो जाएगा तो इसका मतलब ये अब किस फॉर्म में हो गया है, सो नाउ दिस इज नथिंग बट द गैस. तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा इसको. ओके, so now the conversion has taken place into a gas, and this was our experiment. यही हमें पढ़ना था कि how liquid is getting converted into gas. So here what we have taken, this is basically nothing but the
So this is basically the liquid, and finally we have converted this liquid into a gas. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद ये हमारा ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया. एंड फाइनली दिस वाज आवर एम, यही हमें करना था. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ gaseous state or a gaseous form. Okay, so this is what is known as your evaporation. ठीक है, इसी को हम evaporation बोलते हैं. Okay, so I hope you all would have understood this part, that is what is this evaporation basically. Okay, now so this was all for today, not for today but basically this was all for this process, that is your evaporation. If you see here what it is written there, when a liquid is heated it evaporates to form a gas. Water changes into water vapor on heating, the process by which a liquid changes into vapor or its gaseous form. देखिए यहाँ पे ये its word बहुत ही ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है इसका मतलब समझिए. जैसे आप वाटर को हीट करेंगे तो वाटर के ही वेपर्स बनेंगे, ऑयल हीट करेंगे तो ऑयल के ही वेपर्स बनेंगे. ठीक है, जो भी चीज़ आप हीट करोगे उसी के वेपर्स बनेंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इट्स गैसियस फॉर्म. ऑन हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन. ठीक है, तो लिक्विड इवेपोरेट्स टू फॉर्म गैस एंड दस इवेपोरेशन इज गोइंग टू अकर ओनली व्हेन इट इज़ गेटिंग हीटेड. ठीक है, चलिए अब एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद पहले टाइम देख लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है. ओके, कंडेंसेशन. इफ यू मूव अहेड, जस्ट रिवर्स प्रोसेस. व्हेन अ गैस इज कूल्ड it condenses into a liquid. When the water vapor in the air cools down due to the cold surroundings, it changes into water droplets. The process by which a vapor changes into liquid form on cooling, this is known as your condensation. मतलब इसका जस्ट उल्टा, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड आया तो कंडेंसेशन. ओके, अब कंडेंसेशन को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि यू हैव टेकन अ कोल्ड वाटर इनटू अ ग्लास. After some times what you will find that outside the glass container there will be some vapors or water droplets will appear. Okay, so why these water droplets are appearing? क्यों? क्योंकि देखिए ग्लास क्या है, ठंडा है, बाहर की हवा क्या है, गर्म है. ओके, so when these gaseous particles they come and collide, जब इस ग्लास से आकर के लड़ते हैं तो क्योंकि ग्लास का टेम्परेचर बहुत कम है एज कम्पेयर टू द गैसियस टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाते हैं, कूल हो जाएंगे और कूल होकर के वो क्या कर लेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड. ठीक है, इसका आप दूसरा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि आप एक काम करिए कि जब आप चाय बनाते हैं, आप मत बनाइए, जब आपके पेरेंट्स बनाते हैं, सो यू जस्ट गो एंड पुट योर हैंड लिटिल बिट अबव, ऊपर रखना है. ठीक है, कहाँ, वो जो चाय का जो भी आपका कंटेनर है जिसमें चाय बन रही है, जब पानी उबलता रहता है या फिर दूध उबल रहा है, कुछ भी उबल रहा है. ओके, सो यू जस्ट हैव टू टेक अ प्लेट. आप अपना हाथ भी रख करके कर सकते हो, नहीं हाथ रख करके करना चाहते हो तो आप कोई एक स्टील का कंटेनर या कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए, या कोई एक पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा कंटेनर पे अच्छे से वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे देगा. ठीक है, आप बस उसके ऊपर थोड़ा सा रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए पकड़े रखिए. ठीक है, जिससे कि अब जब आप देखोगे कि वो पानी गर्म हो रहा है तो उसमें से भाप निकलता रहता है, तो आप इतना ऊपर रखिए कि वो भाप जा करके आपके उस प्लेट से टकराए. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट. ओके, तो वो कैसे हुआ, वो ऐसे ही हुआ. ठीक है, जहाँ से वेपर्स निकल रहे थे गर्म पानी में से तो वहाँ से गर्म थे. ठीक है, बट ये प्लेट आपका क्या है, ठंडा है, तो जैसे ही ऊपर आया प्लेट से टकराया तो ठंडा हो गया, और ठंडा होकर के क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेगा. इज दैट क्लियर? सो गैस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर droplets, that is basically your condensation. Okay, let us move ahead with the next topic. Okay, the next topic, that is your freezing. Okay, freezing also, when a gas is cooled its molecules come closer and condense to form its liquid form. अब देखिए, ये मैं आपको
दोबारा बना करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक डिटेल में फिर से उसी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रोसेस को आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब है अब हम इधर से चल देते हैं, अगर यहाँ से इस तरफ ये, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर कंडेंसेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस आया तो दिस इज योर इवेपोरेशन। बट अगर इसी को हम रिवर्स करते हैं, जैसे ये गैस है, यहाँ पे हम हीट कर रहे थे, अब हम इसको क्या करें, कूल करें। तो कूल करेंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स और आपस में पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, ओके। सो दिस इज योर कंडेंसेशन प्रोसेस, ओके। लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। हियर फ्रीजिंग सेम थिंग है, ठीक है, वहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फ्रीजिंग ऑल्सो सी, इन द केस ऑफ फ्रीजिंग, जब आप मैं आपको आपके फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर के एग्जांपल से, बेस्ट एग्जांपल है वो, मैं आपको बताता हूँ। लिक्विड्स आपने लिया, ठीक है। आप जब उसमें डीप फ्रीज़र में आप कह लो, या फिर आइस बॉक्स में जब आप उसको रखते हो, या आइस ट्रे में जब पानी करके आप रखते हो, तो पानी का टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। या फिर ठंडा पानी भी रखोगे तो भी क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू कीप योर आइस ट्रे इनटू दैट रेफ्रिजरेटर और आइस चैम्बर, ओके, सो व्हाट हैपेंस, द टेम्परेचर फॉल्स मच मोर, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर और भी कम होता है। तो और भी टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है कि अब वहाँ पे जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, तो मतलब एनर्जी वो क्या हो रहा है, लूज कर रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और वही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे वो अब क्या हो गए, पास आ जाएंगे, और पास आने की वजह से क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज योर फ्रीजिंग, okay. I hope you all would have understood this part, that is what is freezing, okay. Now if we move ahead with our next part, let us have a quick reading of this part. So when a liquid is cooled, it freezes into a solid. The process by which liquid changes into solid on cooling is called freezing. When you put water in a freezer, okay, so it turns into ice. It happens because a liquid is cooled, molecules attract each other more and become tightly packed. So this makes the liquid change into solid form. Solid carbon dioxide, also known as dry ice, changes directly into gaseous carbon dioxide without going its liquid state. अब ये देखिए, ये क्या है, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, इसको समझ लीजिए कि आप देखते हो कि जितने भी हमारे कोल्डर कंट्रीज़ होते हैं, या फिर शिमला के अराउंड, वहाँ पे आइस फॉल होता है, ठीक है। तो दैट आइस इज़ नथिंग बट योर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ड्राई आइस होती है। क्यों? क्योंकि अगर असली का आइस सोचिए, आप एंजॉय भी करते हो काफ़ी, लेकिन अगर सोचिए जो आइस ट्रे में आपने रखा है वो आइस अगर आपके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, आपका सर बचेगा, नहीं बचेगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, मर जाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए वो जो आइस गिरती है दैट इज़ योर ड्राई आइस, ठीक है। वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, इसीलिए हमें उसमें चोट नहीं लगती, ओके। मूविंग अहेड, ओके। इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसको मैं उसी से आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, जो मैंने फिगर अभी यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हीट हुआ, ठीक है, तो हीट होने की वजह से क्या होता है, हीट हमेशा एक्सपेंशन को कॉज करेगा, ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब ये है कि द स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे गेट इंक्रीज, एक्सपैंड हो गए। आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे इतनी ही जगह में क्या है, 2 to 4 to 6 मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे उसी जगह में अगर हम इसको एग्जांपल ले लें, मान लें कि हाँ ये दोनों साइज़ बराबर है, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर एक्सपैंड हो गए हैं, ठीक है, साइज़ बढ़ गई है, दोनों लोग के बीच में स्पेस बढ़ गया है। सो द मॉलिक्यूल्स दे एक्सपैंड, ओके, एक्सपेंशन अकर हो जाता है। वेयरएज इन द केस ऑफ कूलिंग, ठीक है, उसी चीज़ को जब आप कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कूलिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा और हीटिंग में हमेशा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, हीटिंग ऑलवेज कॉजेज एक्सपेंशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, whereas cooling always causes contraction resulting in the decrease in the volume of a substance, okay. Two different substances may show different amount of expansion when heated equally.
Solids expand very little, liquid expand more than solids and gases expand most on heating. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसी टेम्परेचर पे मान लीजिए आप 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि सॉलिड बहुत थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, ठीक है, मेल्ट होकर के एक प्लेट में ही रह जाएगा. लिक्विड को करोगे तो आप एनवायरनमेंट में चला जाएगा, लेकिन गैस को हीट करेंगे तो वो और ज़्यादा दूर चला जाएगा, ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेम थिंग. ओके, दैट इज हीट जितना आप करोगे वो उतना एक्सपैंड होता चला जाएगा, ठीक है, और कूल जितना आप करोगे वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा. Okay, so that is why we say that heating causes expansion and cooling causes contraction. If we move ahead with this part, okay, we use mercury thermometer to measure our body temperature. The mercury in the thermometer expands due to the heat of our body and it rises in the thin tube. We read the mark to which the mercury has expanded as the body temperature. On the other hand, when things are cooled, the molecules vibrate lesser and come closer. They need less space, the things contract on cooling. Different things contract differently. इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है. अब मरकरी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है. बल्ब का मतलब वो लाइट वाला बल्ब नहीं, यहाँ पे बेसिकली आपका मरकरी प्रेजेंट होता है. ओके, और ये आप डार्क कलर की लाइन देखिए, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में देखेंगे तो थोड़ा सा नहीं है, यहाँ तक है लेकिन, ठीक है. तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही आप इसको अपने टंग में या अंडर आर्म्स दोनों जगह रख सकते हैं जहाँ आपका मन करे, ठीक है. आप देखते हो छोटे बच्चों को अंडर आर्म्स में रखा जाता है, बड़े लोगों को टंग में बोल दिया जाता है, और आजकल तो अंडर आर्म्स में ही बेसिकली प्रेफर किया जाता है क्योंकि माउथ में हो सकता है हमें इन्फेक्शंस हो सके. वहाँ अंडर आर्म से भी स्किन इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, बट थोड़े से कम हैं एज़ कम्पेयर टू द योर ओरल पार्ट, ठीक है. तो होता क्या है कि जब हम उसको रखते हैं तो जो उसका बल्ब होता है, जैसे फ्रंट पोर्शन ही अंदर रखते हैं, चाहे यहाँ पे रखें चाहे हम अपने मुंह में रखें, तो वो जो फ्रंट पोर्शन रहता है वहाँ पे मरकरी होता है. ओके, एंड मरकरी एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है. ये मरकरी पॉइजनस भी होता है प्लस एक्सपैंड भी करता है, ठीक है. तो जैसे ही वो, अगर हमें बुखार होगा तो बॉडी गर्म होगी, तो वो क्या होगा, हीट होगा. हीट होगा तो वैसे ही वो एक्सपैंड करने लगेगा. अब उसको इस तरफ वेट, ओके, अगर आप आगे की तरफ देखें, जो बल्ब मैंने आपको बताया, तो इस तरफ तो एक्सपैंड कर नहीं सकता है क्योंकि इस तरफ तो पैक है पूरा, लेकिन इस साइड इसको जगह है मरकरी को एक्सपैंड करने के लिए. तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से राइज करना चालू कर देता है और फाइनली एक जगह जा कर के रुक जाता है. तो वहाँ पे हम उसको अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा बॉडी गर्म है कि नहीं, हमें बुखार है कि नहीं. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. अब दैट लास्ट टॉपिक, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, ये हम लोग कल करेंगे, एंड दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर चैप्टर. ओके, so this was all for you. I hope you all are having the thorough reading of the chapter, जिससे कि आपका पिछला भी पूरा चीज़ें होता रहे, ठीक है. होमवर्क अब में आप ये ले सकते हो कि वॉट एवर द मिडल ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उसको ट्राई करिए, ठीक है. अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और आई होप हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स the fault is there from your side. Okay, so that's all for today. Please don't forget to take the necessary precautions and have a superb day ahead. Thank you.